One second. Yeah, recording has started. So, so today we are going to start with the marketing environment and why it is important to understand marketing environment, because it is the environment only which induces marketers to think about different things, think about different strategies, think about different propositions, think about different plans. If we are living in the same environment, then there won't be much role of strategies as we can see today, right? And very good example of marketing environment is today's environment. You know, COVID has changed everything. And why I'm bringing COVID into everything? Because actually COVID has seeped in into every aspect of life, and you can very well understand that thing. It has changed the way we used to think about our life. It has changed the way which how we drive our lives before that. It has changed the thing how marketers used to see the things. And in nutshell, it has changed different, it has changed the perspective of every living being on the earth. Now we are more earlier, you know, it has different phases. Earlier we used to deny this, then we accepted this, and now we are adopting this, right? So different strategies we are going through this COVID thing. So definition may, if we talk about a particular definition, a crisp definition of environment, the marketing environment, the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with target customers. So first of all, we need to understand actors and forces outside marketing that affect marketing management. See, when we are talking about actors and forces outside marketing, that doesn't mean that internal forces are not important. Marketing means from marketing of that particular, you know, department. When we are saying that particular 4 or 5 people or that particular department that is handling the marketing of the goods, so all the things which are beyond the control of that marketing departments or any forces, and which helps in maintaining and building a successful relationship with target customers. Again, what it intends to do, it enables the marketing management department to build and maintain the successful relationships. Definitely there should be successful relationship, otherwise there would be no business, right? With the, of course, with whom? With, of course, target customers, because they are the reason for our being. So we definitely, we need to have some kind of good relationship with them, right? So broadly, marketing environment is divided into two factors, two types: micro environment and macro. In some books, you will get also internal environment also, so that is covered. So within the micro one, so micro is the actors close to the company that affects its ability to serve its customers, like company itself, suppliers, marketing intermediaries, customer markets, competitors, and publics. So these are the closest, factors on which company can, company can scan these factors. Company can, in a way, affect these factors. The company, in a way, can interact with these kind of factors. So these are the micro environmental factors. So diagrammatically, we can see it like this, that these are the major micro environment. Of course, in different books, you can get different categorization. So basically, the idea is that you need to understand what is micro environment. So micro environment is the all the factors that is very close to the market environment. And as you can see that here we have written company, supplier, intermediaries, competitors, public, and customers. So first of all, start with the company, right? When we talk about company, so see, एक कंपनी किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, एक कंपनी की अपनी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, एक कंपनी के अपने मिशन एंड मिशन क्या है, विजन एंड मिशन, और कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है, that also, you know, depends also what you say deciding in the strategies of the company, right? एक कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है. फॉर एग्जांपल, अमेज़न कुछ अलग वैल्यू सिस्टम अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज में डालता है, नोकिया कुछ अलग डालता है, एयरटेल की कुछ अलग सिस्टम्स है, नोकिया के कुछ अलग सिस्टम्स हैं, और हर कंपनी की अपनी एक
इंडिपेंडेंट इंटरनल कल्चर है. फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का अपना एक कल्चर है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. That depends upon company to company. That depends upon company to company. So ये चीजें कंपनी के ऊपर है. और ऊपर से टॉप मैनेजमेंट का क्या व्यू है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट करता है. राइट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. Yeah. So top management ka view, how much they are pro customer, how much they are pro employees, how much they are pro suppliers, how much they are pro government, how much they are pro environment. These all things make a difference, right? Coming back to our another micro environment, that is supplier. Now, supplier are also very important. Sometimes we see that we are a customer for the supplier. So that means as customer are for us, we are for our supplier. But it's not a case in every situation, because we need to have good relationship with our suppliers. For example, right now, we have seen dump sales, right? And you know that while we talk about, let's say in certain companies, see, supplier has some kind of relationship with the buyer or with the company that we will supply you this X amount of things every month. And in case now COVID time, sales are not happening. So if you are having a good relationship with the supplier, definitely they will understand your problem, and they might say, okay, because the situation is different, okay, if you are not able to take our material, that's fine to us. जितना आपका कितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेट्स से कोई लोट आपका खराब निकल गया है, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कस्टमर. अगर आपको अपने कस्टमर से तो वापस लेना पड़ेगा, राइट, बट इवन आपके सप्लायर से भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. ओनली देन दे विल सपोर्ट यू इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. थर्ड, इसमें क्या सप्लायर का रोल होता है कि आपको कितनी बेटर डील देता है, बिकॉज इफ द सप्लायर विल गिव यू अ बेटर डील, डेफिनेटली यू कैन earn, you can get some kind of cushion between it, right? और उसके बाद आप लोग as a company you can offer good prices to the company, or even if you can fight the competition, and even if you are at par with the others in terms of consumer pricing, then you can have better margin for yourself. And steady supply of the things is also ensured if you are having a good supplier relationship. For example, what IKEA does, IKEA asks its company and it's pass on the information which its customers want, and then it pass on that information to suppliers, and the suppliers changes in the things in the assortment accordingly. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, या आप पतंजलि का अगर आप मॉडल देखें, अब इन्होंने अपने सप्लायर्स कौन रखे हैं, लोकल मार्केट रखी है, छोटे छोटे लोग रखे हैं, वहां से वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे सब कुछ ले आते हैं, उसके बाद दे आर एबल टू सेल द मटीरियल. डेनोए कर्ड सबको पता है, डेनोए कंपनी थी, DNOE आई थिंक, कुछ एक इस तरह की कंपनी थी, बेल्जियम की, है ना ये कंपनी जब आई थी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, इंडिया के अंदर आई थी, राइट, और इंडिया के अंदर ये कंपनी ने रैप अप कर दी अपनी बहुत सारे फंक्शंस. रीजन एनीबडी वुड गेस? कर्ड्स इनकी आई थी, अब नहीं आती है इस तरीके से. तो क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमारा डेयरी बिजनेस में कुछ कंपटीशन किससे? अमूल और मदर डेयरी और you're forgetting that इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडियाज में या छोटे शहरों में सिर्फ अमूल मदर डेयरी नहीं बिकता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांडेड मिल्क. ओपन डेयरी से लोग कितना खरीदते हैं दूध, है ना, पनीर. दूसरा, इंडिया में अभी भी घर में दही जमाया जाता है मैक्सिमम टाइम, राइट. सो वी आर नॉट दैट पीपल कि रोज हम दही बाहर से लाएंगे. ऑफ कोर्स देयर कुड बी डिफरेंट रीजन व्हेन वी आर बाइंग इट, but most of the time we are using our curd on at home, and we are making it ourselves. तीसरा, हम
वो लोग फ्लेवर्ड कर्ड के उसमें आए थे, और हम बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड कर्ड को इतना पसंद नहीं करते, एंड चीप भी है। घर का कर्ड, बाहर का कर्ड बहुत महंगा भी पड़ता है हम लोगों को, राइट। और ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, इंडिया में जो ज्यादातर हमारा दूध, गाय भैंस है या दूध के जो ये जितने भी केटल्स वेटल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बड़े कम है। आप गाँव में जाए, किसी के घर में 2 भैंस है, किसी के घर में 1 भैंस है, किसी के घर में 4 भैंस है, गाय है, व्हाटएवर। एंड अमूल ने क्या किया, अमूल ने कोऑपरेटिव छोटे गांव में जाकर और वो सप्लाई सिस्टम खड़ा किया कि एक सेंट्रलाइज्ड उन्होंने एंट्री पॉइंट्स लिए। आपने एक बुक पढ़ी हो, कोरियन की बुक है, जो डेयरी मैन माने जाते हैं, अमूल के जो फाउंडर हैं। आप अगर उनकी बुक है, मैं नाम भूल रही हूँ, बट अगर आप देखेंगे तो आपको गूगल करेंगे तो यू विल गेट इट। उन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया था, उन्होंने सिस्टम शुरू किया कि उनको पार्टनर्स बनाया, उनसे बायर नहीं बने वो, ठीक है। बायर सेलर रिलेशनशिप की बजाय उन लोगों से पार्टनरशिप की और उनको कोऑपरेटिव का नाम दिया और उनको इक्वल बायर बनाया गया, राइट। सो वहां पर एक सप्लाई चेन खड़ा किया गया, और जब उनके कैटल बीमार होते थे तो वहां पर हेल्प दी जाती थी, एक हॉस्पिटल खोला गया वेटरनिटी का। सो बहुत सारी चीजें की गई। अब डेनोए जो है, बीइंग आउटसाइडर, उसके लिए इस तरह इंटीरियर में जाकर सप्लाई चेन खड़ा करना वाज ए वेरी कॉस्टली प्रोपोजिशन, क्योंकि अभी भी इंडिया में जो गांव में है, लोग डेयरी में एक्स्ट्रा मिल्क देकर आते हैं, पड़ोस में अपना दूध बेच देते हैं, लोगों के घर में सेटिंग अच्छा, इनके घर में एक्स्ट्रा दूध होता है, सो वो बड़े अनसाइंटिफिक तरीके से मेजर करते हैं। कोई बर्तन ले लेंगे, अच्छा इसमें 1 लीटर दूध आता है, इसमें 2 लीटर दूध आता है। सो वो सब चीजें बहुत सारी चलती हैं इंडिया में। फिर क्वालिटी कंट्रोल का बहुत चक्कर रहता है यहाँ पर, इतना ज्यादा, मतलब आपके दूध में इतना फैट से इतना नहीं है, तो इतना सब इंडियन दे आर नॉट एबल टू गेट दोज थिंग्स। सो बेसिकली इसीलिए सप्लाई चेन उनका बड़ा वीक था, नहीं चल पाया, और कस्टमर्स भी नहीं थे। ये बेसिक 2 रीजंस थे आप देखेंगे डेनोए के फेल होने के इंडिया में, राइट। उसके बाद हमारा जो थर्ड मेन आता है, तो सप्लायर आर दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड जॉब डन। थर्ड, उसके बाद है आपका अच्छा हाँ, एक और चीज है, आपको याद होगा कई बार हुआ ऐसे कार्स में, होंडा सिटी ने भी, और काफी कार्स ने, मारुति ने भी, और भी काफी कार्स थे, उन्होंने अपनी कार्स वापस मंगवाई थी। आपको याद होगा, आई थिंक कि कुछ काफी आता था पहले कि किसी का पावर ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ थी, किसी की किसी चीज में गड़बड़ थी कुछ। तो यहाँ पर भी सप्लायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि बिकॉज कार मैन्युफैक्चरर आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एवरी पार्ट ऑफ द कार इन देयर कंपनी, तो हर चीजें कहीं ना कहीं से वो इकट्ठे करते हैं, और बेसिकली वो असेंबली लाइंस है और वो असेंबल करते हैं। अब यहाँ पर अगर उनके सप्लायर ट्रस्टेड नहीं होंगे, एक प्रॉपर क्वालिटी नहीं देंगे, तो वो सारा का सारा जो ब्रांड पे जो सारा रेपुटेशन खराब होगा, वो मारुति का खराब होगा या हुंडई का खराब होगा। वी डोंट नो गियर बॉक्स मारुति ने किससे लिया, वी डोंट नो किससे वाइपर्स खरीदती है, वी डोंट नो ब्रेक सिस्टम किसका लगाते हैं, वी डोंट नो। हम तो एक मारुति गाड़ी खरीद कर आते हैं। सो अगर मेरी मारुति कार कुछ प्रॉब्लम दे रही है, इररिस्पेक्टिव उसमें किसी भी सप्लायर का सामान लगा है, फॉर मी the brand image of Maruti goes down rather than that supplier. So that's why supplier becomes a very important role. Or finance wise bhi they help to the company, quality wise also they can help the company. So that's why that area should not be ignored, keeping in mind that we are the customer of the supplier, so we can do anything. It's not like that, right? And even if they can also think कि अगर आपका same material अगर आपके competitor को भी उन्होंने दे दिया, तो फिर in that case again problem will be big for you, because you must be having some kind of competitive advantage. For example, Amazon और OnePlus का टाई अप जब शुरू हुआ था, तो ये एक वो था कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी पर था, तो उसने उसकी सेल को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। जैसे मी नोट का आप देखते हैं, मी की जो प्रोडक्ट आते हैं अमेजोन की, जब भी आप सेल देखेंगे, फ्लैश सेल देखेंगे, मी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप ये कुछ बनाते हैं, ओनली देन दे आर एबल टू डू दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। देखिए, सिर्फ बायर, सप्लायर और कस्टमर, ये 3 ही पार्टी नहीं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं जो एक स्मूथ फंक्शनिंग में हमारी हेल्प करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब हम अपना प्रोडक्ट बनाए till the customer is consuming that product. So many intermediaries are playing important role in that. For example,
सबसे पहले इंटरमीडिएट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, मतलब आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी जितनी भी होती है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपकी कंपनी के अंदर कुछ आ रहा है सामान, रॉ मटेरियल्स और एनी सप्लाईज। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपका बाहर कहीं जा रहा है सामान। सो ये दो कंपनियां इक्वली इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट कंपनीज। देन मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती हैं आपकी, पीआर एजेंसी सबको पता है आजकल, सुशांत का केस एवरीबडी इज नोइंग, कंगना का केस, या इसी तरह से जब मैगी की हम बात करते कि लेड है इस कंपनी के अंदर, या नेस कैफे का भी थोड़ा सा चीजें खराब हुई थी मैगी के कारण। एंड बहुत सारी कंपनीज होती है जिनकी रेपुटेशन थोड़ी खराब हो जाती है, देन पीआर एजेंसीज आर देयर टू हैंडल दोज रेपुटेशन। सो मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज, how to put that particular message forward in front of customers, that is also very important. How to put your positive picture in front of customers, that is very important. For example, जब साइरस का हुआ था टाटा में, साइरस मिस्ट्री का, तो बहुत कुछ नेगेटिव सा एक चीजें आती हैं, तो वो कंपनी में स्टेक होल्डर्स को बहुत इनसिक्योरिटी देती है और कंपनी के स्टॉक नीचे जाते हैं। तो हाउ मार्केटिंग कंपनीज आर मैनेजिंग दैट क्राइसिस, फॉर एग्जांपल सत्यम केस हुआ, ठीक है, स्टॉक्स को कहाँ तक रोकना है, कैसे रोकना है, वहां पर क्या मैसेज देना है, किस तरह से अपनी बात को पुट करना है, इवन without before facing any kind of press release, their PR agencies always tell them that you have to address this question, these are the possible questions which you might get, and वहां पर उनके रिपोर्टर भी कुछ पेड होता है, and you know that all these things. So they train their clients how to handle these kind of questions. They have some ready-made answer, and you can sometimes make out from their answers also that this is the pre-written answer. So this all has been done by the marketing services. Then financial intermediaries, of course, insurance company, banks, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, हमारे अंडरराइटर्स होते हैं, तो बहुत सारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस होती है, तो बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिट कंपनीज हो गई जो हमारी रेटिंग होती है. So these all companies help in the smooth functioning of the company, so that company can achieve its objective and uh, provide the things to the customer or services or products to the customer. Moving towards next kind of microenvironment factor, that is competitors. See, competitors are important because you have to keep a constant eye on your competitor. आपने देखा होगा Coke और Pepsi, close competitor, Move or Iodex, close competitor, Vim and Nip, close competitor. These are few names. Hit and एक और कुछ Baygon spray, I don't know which. Vim bar का Dettol के साथ आया था. There are so many companies जो बिल्कुल neck to neck एक दूसरे की advertisement, we can make it out, बिल्कुल काट रही हैं. अगर कुछ एक प्लस बोल रहा है तो दूसरा उसका बिल्कुल नेगेटिव लेकर आ रहा है, उसका they are making mockery of that particular thing. So we need to think about those things also कि competitor हमारे क्या strategy follow कर रहे हैं. As a company, we need always should have an eye on the competitor, how they are doing, how they are able to achieve, how they are managing. So we need to see, and at the same time हमें अपना competition साइड से निकालना भी हमेशा बेटर रहता है, that we should find out some cut way from that. जैसे Amazon और Alibaba. So what Alibaba says that we are not that way in competition with Amazon because our model is different. If you hear the Alibaba's founder, who is that? Who is the founder of Alibaba? Jack Ma. Yeah. If you hear him, his interviews and him, then he will say that Amazon is just in selling, more in selling of the products, while Alibaba is more in providing the ecosystem of the products. वो platforms ज़्यादा provide करता है. Right? So they say that we have different business proposition than Amazon. Right? So you need to see कि हमारे competitor exactly क्या कर रहे हैं, हमें कितना similar होना है और कितना उनसे different होना है. So that we need to, as a company, have to decide our strategies. Then publics. Publics is again very important thing. Public आपको कई तरीके की मिलती है. The first one is financial public. Second one is media public. So financial public basically, public का मतलब क्या होता है? सबसे पहले public का मतलब ये होता है कि any group that has an actual or potential interest in or impact of an organization ability to achieve its objective. जो आपकी कंपनी को impact कर जाए, वो आपके लिए एक public होगा. ठीक है. अब ये पब्लिक आपकी फाइनेंशियल पब्लिक हो सकती है, मतलब जो आपको फंड दे नहीं रहा है पर फंड ऑब्टेन कराने में आपकी हेल्प कर रहा है. जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, अगर आपकी कंपनी को अच्छी रेटिंग देंगे, अच्छा बताएंगे आपके बारे में, अच्छे सर्टिफिकेशंस देंगे, तो डेफिनेटली योर फाइनेंशियल पब्लिक, दीज आर योर फाइनेंशियल पब्लिक, योर स्टेक होल्डर्स इज योर फाइनेंशियल पब्लिक. मीडिया पब्लिक, इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है.
because now everyone, especially in Sushant case, especially in Modi government case, especially in Trump case, especially where in various aspects right now you have seen how media is playing. And this media also includes the social media and Facebook story and Trump type. Everybody is all aware about that. So we that's why in today's world जो अब देखें and media has been accused nowadays also to to spread the paid news, to spread the sponsored news also. So we need to be very careful what media is saying, and that's why we should hear different channels. And but the problem is that we get confused what is right and what is wrong. देन गवर्नमेंट पब्लिक्स मतलब गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट है और गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो इन जनरल हम एडवर्टाइजिंग कैसे बना रहे हैं, तो वहाँ पे एजेंसीज जितनी हैं गवर्नमेंट की, उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो जाएगा। वो हमारी हो गई आपकी गवर्नमेंट पब्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एड बना दी जिसमें विमेन का थोड़ा सा रोल आपने ऐसा दिखा दिया कि ऑब्जेक्शनेबल, डेफिनेटली आपका विमेन सेल चालू हो जाएगा। दैट इज अ गवर्नमेंट काइंड ऑफ थिंग, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि कौन आपके ऊपर इशू कर रहे थे। तो गवर्नमेंट पब्लिक को ध्यान में रखते हुए अब आप एडवर्टीजमेंट में अगर आप कोई अपना फॉल्स क्लेम कर देंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट की जो वॉच रखते हैं एजेंसी, वो आपको पकड़ लेगी कि ये गलत चीज ना करें। और कोई ना कोई एक सिटीजन एक्शन पब्लिक होगा जो आपकी PIL डाल देगा और वो PIL के ऊपर गवर्नमेंट फिर एक्शन लेगी, राइट। इंटरनल पब्लिक आपके बेसिकली एम्प्लॉइज हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके अंदर के लोग हो गए, हाउ बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो गए, वो लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं। हम वो न्यूज लेटर वगैरह हम लोग अपनी करते रहते हैं, इंटरनली भी सेट करते रहते हैं। अगर कोई बाहर रूमर हो रहा है तो कंपनी अपने एक्सटर्नल कस्टमर के साथ साथ अपने इंटरनल कस्टमर्स को भी अपने अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी कॉल अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेस सिचुएशन। In general public, of course, you and me, let's say Reliance में क्या हो रहा है, we are also aware if they are doing something wrong, we will also have some kind of voice. Maybe we are not directly affected, but as a society, we are definitely affected. तो वो और लोकल पब्लिक्स मतलब आपने बैरूत का कहाँ पर वो बॉम्ब ब्लास्ट बैरूत में हुआ ना, नहीं लेबनान में हुआ ना, वो अभी अभी जो एक ब्लास्ट हुए काफी सारे, और भोपाल गैस ट्रेजेडी उसके बाद भी एक दो जगह गैस लीक हुई। तो जहाँ की लोकल पब्लिक होती है उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। Now next partner in internal environment is the customer. Now customers are also of different source. First is consumer markets. Let's say I am buying laptop for myself. I'll be the consumer market. I am a part of consumer market. Another one is your what you will say business market. मतलब let's say our college buys laptop for us, for faculty members. In that case, college would be a business buyer, right? Then reseller market, OLX एंड वो और भी थी ना, कौन सी आई है रीसेलर मार्केट, जहाँ पर आप eBay है, एक रीसेलर मार्केट है। आकाश लैपटॉप्स आए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारा उन्हीं से टाइप कर दिया था कि ठीक है आप हमारे लिए बनाइए। ये जैसे अभी पेंडेमिक आया तो PPE किट के लिए या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मास्क के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी सारी एनकरेजमेंट की मीडियम MSME को कि आप लोग हमारे लिए बनाए, वी विल बाय फ्रॉम यू। तो गवर्नमेंट मार्केट में बिक रहा है, राइट। Then international markets, you all know that as we sell product in our Indian market, there and हमने PPE किट वगैरह बनाकर ब्राजील और बहुत सारे कंट्रीज को, और एक वो कौन सी मेडिसिन है, आपको गेट द नेम, जो हमने अमेरिका को भी भेजी है, मलेरिया वाला जो एक मेडिसिन होता है, सो कुछ एक सॉल्ट होता है, वो हमने बार बार भेजा। सो वी हैव इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। Now these all are the you can see that internal factors और माइक्रो फैक्टर्स दैट आर बेसिकली जो कंपनी के फैक्टर्स हैं उनको हम इंटरनल फैक्टर्स बोल देते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोल देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही कंपनी की घर की बात है, हाउ टू सेट दोस। बाकी फिर भी एक्सटर्नल है, बट दीज आर इंटरनल, राइट। नाउ आई एम मूविंग टू द एक्सटर्नल और मैक्रो फैक्टर्स
which are demographic, economic, natural, technological, political, and cultural. And before studying macro, we should understand these are the larger societal forces that affect the micro environment. Basically, micro इन्हीं से affect होते हैं. जैसे demographic जैसा होगा, customer वैसे ही सोचेगा. राइट नेचुरल जैसा होगा वैसा ही आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, या टेक्नोलॉजिकल जैसा होगा आपके सप्लायर वैसा ही आपको देंगे, पॉलिटिकल होगा आपकी पब्लिक जो है उसी तरीके से सोचेगी, एंड इंटरलिंकिंगली ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं. राइट तो डेमोग्राफिक के अंदर देखिए, डेमोग्राफिक जो है वो एक कंट्री का कभी भी सेम नहीं रहता है. ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में चेंज होता है पर कभी भी सेम नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम आज बोलते हैं हमारे पास डिविडेंड है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन. इसके अलावा इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री की यंगेस्ट पॉपुलेशन है जो हमने कभी सुनी ही नहीं? एनी आइडिया? Which other country, which is the another country which is having this youngest population other than India? Any idea? No? I think it's Indonesia. And every country has this kind of plateau thing or this dividend for maybe say 25 years or 30 years. Now you can see that in India also the way demographics are changing a lot. So we have this demographic dividend right now, right? Maybe after 20 years we will be another China or Japan if we if not if we are getting this education and we think that the cost of living is high. So now you have seen that people have doing late marriages. They are thinking about 10 times before having a kid. Now kids are seen as liability. So times have changed a lot, right? Earlier the things which we think that after getting a job were the necessity, now we think all those things as a liability. I can give you the example. Earlier पहली चीज क्या होती थी, जैसे ही शादी हुई ओके आपका जॉब हुआ चलो इसकी शादी करो. अब ये एवरीबॉडी इज रनिंग फ्रॉम दैट इज आल्सो सीन एज ए लायबिलिटी. उसके बाद ओके शादी हो गई, एक घर चाहिए, ठीक है. घर अब एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है बिकॉज नाउ पीपल वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड दे से कि अगर एक घर हो गया तो विल बी लिमिटेड इन दैट अपॉर्चुनिटीज. लोग पहले कार को एक सिंबल मानते थे खरीदना, अभी भी मानते हैं बट स्टिल जो बड़े शहरों में रहते हैं दे आर मोर टुवर्ड्स शेयरिंग और हायरिंग अ कैब. सो दैट इज आल्सो सीन एज लायबिलिटी. फर्नीचर देख लीजिए, बेड देख लीजिए, नाउ वी आर ऑन दैट मॉडल कि हम रेंट बेसिस पर यूज करेंगे या हम इस तरह से करेंगे एक्सचेंज बेसिस पर. वी डोंट वांट एनीथिंग परमानेंट और फॉर द लॉन्ग टर्म. नाउ हमारी सोच बिल्कुल बदलती जा रही है. सो डेमोग्राफिक में आप देखें, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि पहले फैमिली प्लानिंग और इन सब की इतनी एड्स आया करती थी बिकॉज पहले ये जो पॉपुलेशन थी इसको एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता था. बट नाउ दिस पॉपुलेशन हैज बीन सीन एज ए मार्केट. तो अब इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता. जैसे ओके मेनी पीपल दैट मीन्स मेनी मार्केट. सो अफ्रीका इज द नेक्स्ट अपकमिंग हब. नाउ इट्स एशिया एंड वेरी सून that Africa will be the hub for these all MNCs, and many MNCs have started their operations in Africa also. They know that Asia is more or less exhausted and Asia में अपने tycoons बहुत खड़े हो गए हैं because Asia is more or less developed now. Now they are focusing towards Africa, right? Growing middle class, these MNCs has come and middle class has maximum bulge. We are bulged from the center economy. ऊपर के लोग बहुत कम है, नीचे के लोग बहुत कम है. जो मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है हमारे इंडिया में. देन पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया, हमारे रूरल इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. एक टर्म होती है बॉटम ऑफ पिरामिड जिसको हम बीओपी बोलते हैं, ये प्रहलाद कक्कड़ ने दी थी. नाउ व्हाट दिस है कि ये इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है. डायमंड चिप्स सुने आप लोगों ने? डायमंड चिप्स मैंने मार्केट में देखे, लोग 5-5 रुपए के हैं, बिल्कुल लेस की तरह उन्होंने कॉपी किए हुए हैं. हर चीज का एक रेप्लिकेशन है जो बहुत सस्ता है, क्वालिटी वाइज भी घटिया है, बहुत अच्छा नहीं है. और आप देखेंगे तो वो सब रूरल इंडिया, खैर रूरल का मतलब ये नहीं होता कि गरीब है, बट
मोर और लेस कंपैरेटिवली रूरल इंडिया में जो लोगों की बाइंग पावर है वो कम है. लीव बिहाइंड दोज लैंडलॉर्ड्स एंड बिग लैंड ओनर्स, उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी आप अगर आप देखें तो उन लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, परचेजिंग पावर बहुत कम है. सो उसके बेसिस पर एक बॉटम ऑफ पिरामिड उन्होंने निकाला था कि कंपनीज को उस सेक्शन को भी फोकस में रख के अपनी चीजें निकालनी चाहिए, बिकॉज दैट इज अ गुड मार्केट. एंड जनरेशनल मार्केटिंग, एक टर्म होती है ग्रे सुनामी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट ग्रे सुनामी? ग्रे सुनामी किसी ने सुना है कभी? आपको बोलना पड़ेगा ये सर नो, बिकॉज क्या है कि मैं प्रोजेक्टिंग ग्रे सुनामी मीन्स दे आर, और इसको बोल देते हैं सिल्वर मार्केट ऑल्सो बोल देते हैं. एक्चुअली ये सीनियर सिटीजन मार्केट के बारे में बोला गया, स्पेशली जापान और चाइना जो एजिंग है मार्केट्स. अब ये वो जनरेशन है जिसके पास पैसा खूब है, पूरी उम्र कमाया है, खूब पैसा, they can spend, but they have certain kind of limitations, health की, right, mobility की, और बहुत इनके पर्टिकुलर शौक होते हैं, राइट. तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप देखिए सीनियर सिटीजन टूरिज्म भी एक अलग से एक टूरिज्म की ब्रांच निकल आई. जितने भी रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स बहुत ज्यादा इन पे आ रही है, क्योंकि अब जो सीनियर सिटीजन है ये बच्चों के साथ तो रहते नहीं ना, या यूं तो बच्चे इनके साथ नहीं रहते, बिकॉज एवरीवन इज मूव्ड अराउंड की अपॉर्चुनिटीज के लिए. सो दे आर मैनेजिंग एट देयर ओन. इवन इफ इन दिल्ली यू विल फाइंड मेनी हाउसेस जहाँ पर ओल्ड एज कपल रहते हैं, सिर्फ मेड्स के सहारे या बाकी चीजों के सहारे दे आर मैनेजिंग. तो जापान में तो लेबर भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा. तो what robots are doing, they are working or they are functioning as a companion for those old age people. They are taking care of them, ह्यूमनॉइड्स की तरह, रोबोट्स की तरह वो उनका ध्यान रखते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो उनको दवाई वगैरह पकड़ा देते हैं, हाथ में पानी पकड़ा देते हैं. सो दे आर डूइंग सेवरल जॉब्स. कहने का मतलब ये है कि जनरेशनल मार्केटिंग में अलग अलग जनरेशन, जैसे बच्चों को आप देखिए कोई भी चीज बेचनी हो इंडिया में तो बच्चों को टारगेट कर दो, सब चीजें बिक जाएंगी, राइट. बच्चे डिसाइड करते हैं कई बार तो गाड़ी का कलर कौन सा हो, स्पेशली आजकल की जनरेशन के बच्चे. तो ये सारी चीजें जो जनरेशन वाइज मार्केटिंग हमारे यहाँ होती है, तो ये बिकॉज हम डिफरेंट जनरेशन को फोकस करते हैं. In changing family systems, DINK or DISC की full form anybody would like to tell? Anybody would like to tell DINK or DISC? Anyone has ever heard about that? No, ma'am. No, ma'am. DINK means double income, no kids. And DISC is double income. Double income? Single. So now, family system has changed. और मुझे इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हस्बैंड वाइफ वर्किंग, बच्चे है ही नहीं, है तो सिंगल किड. इसीलिए हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा साल तक रहेगा नहीं, बिकॉज नाउ किड्स आर बीइंग सीन एज लायबिलिटीज. नाउ चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं. आई एम ऑल्सो वर्किंग. बहुत सारों की मम्मी वर्किंग होंगी, बहनें वर्किंग होंगी, मैरिड, या यू मस्ट हैव सीन द मैरिड वुमेन लाइफ. नाउ दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. उनकी डिमांड इज कम्प्लीट डिफरेंट. नाउ जो मेड्स हैं, ये डिफरेंट अप्लायंसेज हैं या स्मार्टफोन्स हैं, डेफिनेटली दे आर डिमांडिंग दोज मोर, because to manage both things, home and this office, they need these kind of things. So changing role of women has changed the consumption pattern of households, right? Maybe ready to eat जो आप मार्केट में इतना देख रहे हैं आजकल, पैकेज फूड इतना देख रहे हैं, that is one of the reason of changing role of women. आप सोचेंगे रिलायंस पे कटिंग वेजिटेबल्स मिलने लगे थे पहले, ठीक है, करेला, कटहल, बीन्स, कैप्सिकम, सब कटी हुई सब्जी. तो कोई उनसे पूछा कि यार ये कटी हुई सब्जियां कौन लेता है, बिकॉज अभी भी हम लोगों को है ना फ्रेश काटा और सब कुछ, बट दे से ये ज्यादा बिकती है. रीजन मीन ऑफिस से सब लेडीज आ रही होती है, आते आते वो घर पे सब्जी कटी हुई ले जाते हैं कि जाकर बस बना देंगे. वी डोंट हैव सच टाइम कि हम सब्जी काटे, धोए, साफ करें और फिर उसको काटे. इट विल टेक हाफ ऑफ आवर टाइम. सो कटिंग वेजिटेबल, कुकिंग अगर खुद करनी है तो कटिंग वेजिटेबल्स. सो अब ये एक नया सेगमेंट पैदा हो गया. रेडीमेड पराठा, रेडी टू ईट. आप देखिए दाल सब्जी बनी हुई, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में भी हम यूज करते हैं, बट घर में हम एज ए वो बॉइल्ड MTR के आलू
और वो बहुत सारी चीजें, डोसा बेटर, ये बेटर, वो बेटर, बहुत सारी चीजें। तो जितना रेडी टू ईट फूड है या ऑलमोस्ट हाफ डन चीजें हैं, ये सब बिकॉज ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ विमेन। और फॉर दैट मैटर, अगर कई बार जो बच्चे भी अकेले रहते हैं, हस्बैंड्स भी अकेले रहते हैं, कि दो लोग हैं, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं और कर रहे हैं, in that situation also they might need this. Then increasing diversity. Now it's very common to see offices, in offices की एक अफ्रीकन बैठा है, एक जापानीज बैठा है, एक चाइनीज बैठा है। अगर आप बड़े कंपनीज की बात करें, एक जस्ट फॉरगेट दिस मुस्लिम, हिंदू और इंटरनल कास्ट थिंग, बट आप ग्लोबल ऑफिस में देखिए तो डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है। और आप मानेंगे नहीं, इंटरनेशनली ये एक रूल भी है कि 2% आपको ये हायर करने हैं, 1% आपको इतने लोग हायर करने हैं, इस एथनिसिटी के हायर करने, इस रेस के हायर करने, सो दैट दे जस्टिफाई देमसेल्व्स एज ए ग्लोबल कंपनी। तो डाइवर्सिटी बहुत इंक्रीज हो रही है। प्लस जब वो कोई एक जिस मार्केट में वो एंटर करना होता है, उस मार्केट के लोगों को वो उस टीम में डालते हैं कि आप बताओ आपके लोग कैसा सोचते हैं, राइट? एक इंडियन से ज्यादा इंडियन की साइकोलॉजी कौन बताएगा, राइट? चाइनीज आकर नहीं बता पाएगा, अमेरिकन को समझ ही नहीं आएगा कि किस दुनिया में रहते हैं लोग, कि ब्रश फेंकते ही नहीं है, अखबार फेंकते ही नहीं है, यूज ही करते रहते हैं, मल्टीपल यूज है हमारे टूथ ब्रश के भी। तो ओनली इंडियन कैन टेल, राइट? So this is the benefit of increasing the diversity. Now, second factor in that is economic. Of course, जो हमने आपको बताया कि मिडिल इनकम बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक फैक्टर, हमारे कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस जो शुरू हुए वो बिग सिटीज के कारण शुरू हुए, जहाँ पर लोगों के घर बहुत छोटे छोटे थे। दो तरह के लोगों के लिए यूज हुए, एक जिनके घर बहुत छोटे छोटे थे या घर थे ही नहीं और परचेजिंग पावर भी कम थी, तभी हमारे सेशंस यूज हुए कि लोग आते हैं, थोड़ा सा तेल ले लिया। यू विल बी सरप्राइज, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, तेल के भी छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, 1 रुपए का तेल सर पे लगाया, बस काम चल गया, लिया तेल लगाया और हो गया, रेदर देन शैम्पू और छोटी चीजों के। और आप तो मार्केट में देखते ही हैं कि चाहे हेन्स केचप हो या कोई भी चीजें हो, इवन वो क्या बोलते हैं उसको, हर्शले मिल्क का वो जो डलता है सिरप, और बहुत सारी चीजें पाउचेज में आने लगी, बिकॉज दे नो कई फैक्टर्स हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि इतना हमारा खराब नहीं होगा, यूज हो जाएगा, ट्रायल बेसिस पर लेते हैं, या स्टोरेज से बचना चाहते हैं, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, बट डेफिनेटली इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए पे एज पर यू यूज, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन कोविड टाइम्स डेफिनेटली और भी ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर स्ट्रेस आया। नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू आर पोजिंग योर कंपनी। एक कपड़ा बनाने के लिए, एक टी शर्ट बनाने के लिए you need so much of water, but we never think while we are buying a t-shirt, we think अच्छा 100 रुपए की मिल रही है, 150 रुपए की मिल रही है, तो उससे क्या होता है, हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, एक चीप लेबर और एक कई तरह से एक्सप्लोटेशन हो रहा है कुछ कंट्रीज के ऊपर, उनकी लेबर इतनी बॉन्डेड लेबर बन गई है, बांग्लादेश की और बहुत इंटरनल छोटे छोटे कंट्रीज की, और हम लोगों को सस्ता प्रोडक्ट देने के चक्कर में और हम लोगों को ज्यादा खरीदवाने के चक्कर में कंपनीज आर डूइंग लाइक दिस। So we, as an educated citizens, we should think that we should not mind paying high, so that सबके साथ vegetable diet हो, sustainability हो, but हमें कम खरीदना चाहिए, minimization में रहना चाहिए, minimalization में रहना चाहिए, but we should make sure that we should buy on good prices, right? Because एक चीज को बनाने के लिए अब वो क्या करते हैं, सस्ता देने के लिए रिवर्स का वाटर तो यूज कर लेंगे, पर उसको अनट्रीट करके नदी में छोड़ देंगे, क्योंकि उसको ट्रीट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और उस बढ़े हुए प्राइस पे कोई चीजें खरीदेगा नहीं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर द कॉज एंड वी आर द इफेक्ट ऑफ दिस नेचुरल हैजार्ड्स, राइट? हम कह तो देते हैं कि कंपनी जब बेच रही है तो ऐसे, जब डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनी किसको बेचेगी? सो it's very easy to pass buck on the companies, but somewhere internally we all are responsible for this because we are buying these kind of products. And many times you think मेरे अकेले से सोचने से क्या होगा, and believe me everyone is thinking like that कि मेरे अकेले रोकने से क्या होगा, and that's the benefit companies are taking, and when everyone is thinking कि मेरे से क्या होगा, then कोई भी नहीं कर रहा, so that price ultimately we are paying. एंड टेक्नोलॉजी तो रोज चेंज ही हो रही है,
अब RFID आ गया, हर जगह बैंड आ गया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई। अब आपको टिकट हाथ में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आपको बैंड बांध देते हैं किडी एरिया में, वहीं से पता चल जाता है अच्छा आपका बच्चा इतनी देर से गया था, वही सिस्टम पे ब्लिंक होने लग जाता है आपका बच्चा 5 मिनट, वरना तो खेलती ही लड़ाई नहीं अभी तो गया था, कितनी राइड कितनी बार ले ली, कितने भी अम्यूजमेंट पार्क है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और आपकी ट्रैकिंग भी हो रही है उस बैंड से कि आप पूरे के पूरे सेंटर पे कहाँ हो। लेट से आपका बच्चा है, आपके बच्चे ने बैंड पहना हुआ है और आपका बच्चा कहीं मिसप्लेस हो गया है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू दोज ऑफिशियल्स की भैया ये RFID बैंड था या ये था वो, यू कैन ट्रैक योर किड ऑल्सो। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज भी फायदे के लिए भी यूज हो रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही है। पॉलिटिकल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प और मोदी आने से इंडिया और यूएस में क्या क्या हो रहा है, यू ऑल नो दैट। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन डिस्कसिंग दैट। GST, demonetization and many more, but ये दो थोड़े पॉपुलर गए हैं। And culture is always important. Many things which are famous in India or culturally hit in India, they might not be a good hit in US or Japan. So culturally a company need to, आपको पता है इंडिया के अंदर अंदर भी सेगमेंटेशन की जाती है। जो चाय की पत्ती होती है, अगर आप वेस्ट बंगाल में सेम ब्रांड की खरीदेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, अगर आप पंजाब में खरीदेंगे उसी कंपनी की तो वो बैच अलग होगा, राइट। तो विद इन अ कंट्री आल्सो फॉर एरिया वाइज ब्रॉड सेगमेंट वो बना देते हैं कि कहीं के लोग स्ट्रॉन्ग टी पसंद करते हैं, कहीं के लोग माइल्ड टी पसंद करते हैं। जैसे आप कलकत्ता साइड जाएंगे वहां पे लीव वाली टी का बड़ा शौक है, वो इस तरह से चाय नहीं बनाते जैसे हम उसको बॉईल कर करके बनाते रहते हैं, बट दे डू उसको गर्म पानी में डाल के उसको दूसरी तरीके से बनाते हैं। फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे यहाँ पे काली चाय ज्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग चाय। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि किधर की बात किस सेगमेंट में जा रहा है, और उस कल्चर के हिसाब से दे मोल्ड देयर प्रोडक्ट्स। So that's why culture also play a important role, right? So that's all for today. Any problem or any question you want to ask, you can. Anything.